fun. Okay. Now let's come to this chapter, acid-base chemistry. Now we'll be little fast with this. So जहाँ पे तुमको नहीं समझा, please let me know. Okay. Now you can unmute also while answering. सबसे पहले, how will I define acid and base? Acid में ना हमेशा H starting में होता है, like HCl, H2SO4. These are examples of acids. ठीक है? But H2O is not an acid because that's water. Next, एक ऐसा एसिड है जिसका H पीछे होता है, CH3COOH, एसिडिक एसिड. ओके, बेसिस यानी NaOH, ठीक है, KOH, जिसमें OH आता है. सो जिसमें एसिडिक, जिसमें बेसिक रेडिकल H आएगा, that is acid. जिसमें एसिडिक रेडिकल OH आएगा, that is basic. ठीक है, come to page 58. Page 58, last line. Please mark that definition. I think mark किया रहेगा already तुमने. ठीक है, H plus as the basic radical, जिसमें H plus is the basic radical, okay, is called as an acid. दूसरा वाला definition, जिसमें OH minus is an acidic radical, is called as a base. Okay, compounds which have both basic and acidic radicals, जिस compound में basic और acidic radical दोनों रहेगा ना, that is called as an ionic compound. ठीक है, example like salt. ठीक है, salts are ionic compounds. Now let's go in detail about salt. So Na, electronic configuration of sodium is 281. Chlorine, electronic configuration of chlorine is 287. तो इसका electronic configuration क्या है? Yes please. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. नाउ दोनों स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, दोनों को स्टेबल होने का है, यानी दोनों को ऑक्टेट स्टेट अचीव करना है. सो कैन यू टेल मी, ये ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए क्या करेगा? Gives one electron. क्लोरीन ऑक्टेट स्टेट बनने के लिए क्या करेगा? Take one electron from सोडियम loses one electron. तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया. टेल मी, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण सोडियम कौन से टाइप का आयन बनता है? एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण विच टाइप ऑफ आयन? Now this Na plus and this Cl minus will come near each other and form salt. Are you clear with this? This bond so formed between oppositely charged ions. This bond is called as an ionic bond या फिर electrovalent bond. ठीक है? Now when this NaCl is dissolved in water, समझो मैंने salt को water में डाल दिया ना, तो water क्या करेगा पता है? That water will enter in between them. Water will get in between them and separate this as Na plus and Cl minus. Water इसके बीच में जाके इनको अलग अलग कर देगा, ये हीरो हीरोइन को अलग करेगा. So water is responsible to dissociate. Water NaCl को dissociate करेगा. This is called as dissociation. Are you clear with this? Next one, dissociation of ionic. Yes, sir. Now, come to the next page, page number 60, Arrhenius theory. Now, for Arrhenius theory, okay, let's take an example. H2SO4.
Now, as soon as you dissolve it in water, water will dissociate it into H plus HSO4 minus. Now check this. What actually happened? Concentrate here. H2SO4 था, बराबर? H2SO4 में से water ने dissociate करके H plus अलग कर दिया और जो बचा हुआ HSO4 minus है ना उसको अलग कर दिया. But this is not complete dissociation. Still dissociation is left. तो अब HSO4 minus में फिर से dissociation होगा. यानी क्या होगा? एक और H plus अलग होएगा और SO4 2 minus. समझ में आ गया? Clear with this? Everyone, please Yes, sir. answer faster. Yes, sir. हाँ. वैसे HCl वाला इजी था तो मैंने वो नहीं कराया. सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O. अब यहाँ पे डिसोसिएशन कैसे होगा देखो. When I put it in water, सोडियम Na प्लस, ठीक है, बट O और H2O का OH माइनस हो जाएगा. पर यहाँ पे 2 H है और 2 O है यानी 2 OH माइनस हो जाएगा और Na भी 2 है यानी 2 Na प्लस हो जाएगा. सो वंस अगेन NaO प्लस H2O में Na अलग हो गया, OH अलग हो गया. 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो 2 OH माइनस, 2 sodiums are there to 2 Na plus. Is that clear? This is Arrhenius theory. ये एसिडिक रेडिकल, ये एसिड है. कैसे मालूम पड़ा? ये एसिड है कैसे मालूम पड़ा? दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है. कैसे पता चला? बिकॉज वी गेट हियर एसिडिक रेडिकल. OH माइनस को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल. उल्टा बोलते हैं, उल्टा याद रखिएगा. H प्लस को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल. OH माइनस को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं बेसिक रेडिकल. नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. समझ में आया? Yes, sir. Okay, now. Yes, sir. Now the next definition is very simple but very interesting also. That is strong acids, weak acids, strong base, weak base. First, उसका लाइन मार्क करो. Strong acid का dissociates almost completely. Example, HCl. जैसे HCl, when I dissolve in water, ये ना अलग अलग इजीली हो जाएगा, एकदम इजीली. डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट मींस मैंने 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl पुट अप किया वाटर में, 40 में से 49 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गया, एक मॉलिक्यूल नहीं हुआ, चलेगा. ऑलमोस्ट कंप्लीटली. समझ में आ गया? ठीक है. सो मार्क करो लाइन, डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली. उसके नीचे लाइन मार्क करो, मेनली H प्लस आयंस. Weak acid does not dissociate completely. Does not dissociate completely. उसके नीचे एक लाइन मार्क करो, acidic radical in small proportion. Now, H2CO3 is there. This is a weak acid. दूसरा और एक weak acid है CH3COOH, acetic acid. Now listen. This is carbonic acid. 2H plus CO3 2 minus. चेक करो, ये 2H plus बना बट ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ. एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 डाला है. वो 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड में से सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ, बाकी 45 मॉलिक्यूल ऐसा ही है. अब ये डिसोशिएट क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? लाइक why will I call this as strong acid? अगर ये completely dissociate हुआ है ना, because it completely dissociate, so it will undergo another reaction. So it will react with another product over here. क्योंकि dissociate अलग हो गया ना. See, अलग होने के बाद किसी और से combine होना easy है, पर dissociate हुआ ही नहीं, dissociate हुआ ही नहीं, तो किसी और से कैसे combine होएगा? फर्क समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, Yes, sir. स्ट्रॉन्ग Yes, sir. एसिड
डिसोशिएट्स कंप्लीटली, मैक्सिमम नंबर ऑफ HCl अलग अलग हो गया, तो वो जो H प्लस है ना, दैट हैज दैट मच ऑफ पावर, वो किसी और के साथ रिएक्ट हो सकता है। पर अगर डिसोशिएट हुआ ही नहीं तो H प्लस में पावर ही नहीं है किसी, क्योंकि उसको किसी और ने पकड़ के रखा हुआ है। सो दिस सी सेम थिंग हैपेंस विद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक ने उसको पकड़ के रखा है, सो ये डिसोशिएट हुआ नहीं, इसके कारण वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? क्लियर? सेम वे स्ट्रॉन्ग बेस, Yes, sir. same way strong base. Why this is called strong base? Because it will dissociate completely. ठीक है? Same way there is ammonium hydroxide. Why this is called as weak base? Because this will not dissociate completely. यानी इसका reaction fast होगा, इसका reaction slow होगा, इसका reaction fast होगा क्योंकि ये strong base है, इसका रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि ये वीक बेस है। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ Yes, sir. एल्कलीज, Yes, sir. एल्कलीज क्या होता है? बेस dissolved in water is called as alkali. Bases dissolved in water is called alkali. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now HCl में यहाँ पर बेसिक रेडिकल है. This is a basic radical. This is a basic radical. Okay, H is a basic radical. अगर H 1 है यानी basicity is 1. But if H is 2 means the basicity is 2. ठीक है? Same way OH is the acidic radical. अगर OH 1 है means acidity is 1. अगर OH 2 है means the acidity is 2. Is this clear? So what all things you have to remember? Now to find the concentration of solution, you need to understand what is the mass of the substance given, what is the name of the substance given, what is the volume of the substance given. Okay, तो ये तीन चीजों पे ध्यान देने का है. First, using the name of a substance, first find its molecular mass. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इज 1, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास इज 35.5. सो टोटल मॉलिक्यूलर मास बिकम्स 36.5 ग्राम्स. ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? इन ग्राम्स लिखना है. ठीक है? वी आर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. सो जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट विल बी इन ग्राम्स. रिमेंबर ना, ये पहले कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए. याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ओके. इनफैक्ट ये मॉलिक्यूलर मास डेल्टन में रखो, चलेगा. नाउ डेल्टन में रखना मॉलिक्यूलर मास को. नाउ सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड नंबर ऑफ moles. To find number of moles, the formula is mass of the solute जो तुम मिक्स कर रहे हो सोल्यूशन में अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. ये हमने एक्चुअल में लास्ट टाइम ये सम किया है, इधर तक किया था. ठीक है? तो mass of solute, what is the mass of solute given as 7.3. 7.3. Molecular mass is 36.5. Are you clear with this? 5. Yes. Yes, sir. Now Yes, 73 5s are 365 होता है. डेसिमल कैंसिल हो गया. 73 5s are is 365. अब 1/5 को डेसिमल में कैसे करते हैं पता है? इजी टेक्निक क्या है? वैसे तो डिवाइड कर सकते हैं. इजी टेक्निक है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो. तो 2/10 यानी 0. This becomes 0.2 moles. I hope यहाँ तक समझ में आ गया नंबर ऑफ मोल्स तक.
Yes. Yes, sir. Sir. Third, volume we needed in liters. सब full form में लिखना, ये सब short forms नहीं, एग्जाम में नहीं अलाउड है. Volume we need in liters. तो वॉल्यूम उन्होंने दे के रखा है 100 ml. लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करने का, तो ये आता है 0.1 लीटर. ठीक है. अब तुम्हारा फाइनल स्टेप, concentration of solution in grams per liter. ठीक है. So concentration of solution in grams per liter. Formula is, there are two methods of finding concentration of solution. Means तुम्हारे solution में how much of solute is there. I hope everyone knows what do you mean by solute. अगर ये water है, मैंने इसके अंदर HCl डाला है, ठीक है, तो ये HCl जो मिक्स कर रहा हूँ ना वाटर के अंदर, ये HCl मेरा solute हो गया. समझा? तो मेरे को ये solution का concentration find out करना है. That is what we are doing. Okay. Now concentration of solution in, there are two methods to find concentration of solution. One is grams per liter में find out करना है और दूसरा molarity में find out करना है. मतलब हम लोग molarity find out कर रहे हैं. ठीक है. So come to that question. Page number 74. Question is, find the concentration of solution in grams per liter या फिर moles per liter. Moles per liter को ही molarity बोलते हैं. ये दोनों बहुत इजी स्टेप है. एक बार तुमने ये इनिशियल 3 स्टेप कर लिया ना, ये बहुत इजी स्टेप है. फॉर्मूला इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. व्हाट इज द मास ऑफ सब्सटेंस? मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है? 7.3. 7.3 अपॉन 0.2. सॉरी तो वॉल्यूम में लीटर आएगा ना 0.1. 0.1 है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. 7.3 अपॉन 0.1, दोनों का डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 73 अपॉन 1 यानी क्या आएगा? 73 ग्राम्स पर. इजी टू अंडरस्टैंड? Yes. Sir. ओके. नेक्स्ट वाला, concentration of solution in molarity. molarity यानी moles per liter. moles per liter का फॉर्मूला आता है number of moles upon volume in liters. Number of moles is 0.2. volume in liter is 0.1. 0.1. Will cancel 0.1. 2 moles per liter. Yes, 3 grams of CH3COH in 100 ml of solution. Now किस किस चीज पे ध्यान देने का है? मास ऑफ सॉल्यूट पे ध्यान देना है, नेम ऑफ सॉल्यूट पे ध्यान देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है. समझ में आया? फर्स्ट पार्ट, लेट्स फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH. कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है. समझ में आया क्या लिखा है? Yes. फिर से कार्बन, यानी फिर से 12, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास. 12 प्लस 3 15, ये 32, 33, 35, 40 प्लस 15, 55. वापस चेक कर देना. 55. 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27, 28 और 32. नहीं रे, गड़बड़ हो गया. 12 प्लस 3 15 plus 12 27 29, 15 plus 12 27 28 और 32 60 आता है ना? बराबर है? Yes sir. 60. 60 है ना? बराबर है ना? Yes, sir. तो 60 डाइट. ओके.
नाउ तो ये अभी स्टेप्स लर्न करना है। पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है। पहला मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू फाइंड द Moles. Number of moles. Number of mole. नंबर। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स है यार, ये एग्जाम में आएगा, 100% अटेंड करो, 3 मार्क फ्री में ही है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट Solute upon Mass of molecular solute mass. molecular mass in grams. So mass of solute is, what is the mass of solute 3 given? gram. 3. 3. And molecular mass is 60. 3 by 60 यानी 1 by 20. One. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 किया था, रिमेम्बर? वही करते हैं। Yes, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 by 100 यानी हो गया 0.05 मोल्स। ठीक है, ये तुमको कैसे डिवाइड करना है वो तुम्हारा चॉइस, मैंने एक ट्रिक बता दिया, वो तुम्हारा चॉइस कैसे करना। थर्ड, नेक्स्ट आई नीड वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑलरेडी 100 ml दिया है और मेरे को लीटर में चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000 100 upon 1000. हो गया 0.1 liters. Now I am going to find concentration of solution in grams per liter. Same way, concentration of solution in moles per liter. ये मेरे सिर्फ आंसर्स है, ये दो अलग अलग टाइप से कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के तरीके हैं। These are my final answers. Okay. Now the method is grams लिखा है ना, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर लिखा है, लीटर मतलब वॉल्यूम इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स इज 0.1। डेसिमल निकाल दोगे तो ऊपर 0 आएगा। 30 अपॉन 1 यानी 30 ग्राम्स पर लीटर। अब मोल्स पर लीटर, तो ऊपर मोल्स लिखा है यानी ऊपर आएगा 0.0. नंबर ऑफ मोल्स, नीचे लीटर लिखा है यानी वॉल्यूम इन लीटर। Volume in liter. नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.04. 0.05. वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है। 0.1. दोनों का एक डेसिमल प्लेस कैंसिल हो गया, बोथ एक डेसिमल प्लेस कैंसिल हो गया, यानी इसका 2 डेसिमल प्लेस में से एक डेसिमल प्लेस कैंसिल, तो डेसिमल इधर आएगा, यानी आएगा 0.5 मोल्स पर लीटर। So this is 30 grams per liter या फिर 0.5 moles per liter. Next topic which we are doing is the pH solution. When the pH is 7, we call it as neutral. Below 7, acidic. Above 7, basic. ठीक है? So below 7 जितना भी जाएगा, that is acidic in nature. Above 7 is basic in nature. Okay. To find the pH level, we use, what do we use here? We use litmus paper. कि acid है कि base है, तो litmus paper का एक limitation है. What is the limitation of litmus paper? Litmus paper सिर्फ इतना बताएगा कि acidic है कि basic है, पर उसकी वैल्यू नहीं बताएगा। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, universal indicators. You can check that page number 64, universal indicators, page 64. Now universal indicators मतलब क्या, तुम वो पेपर अंदर डालो, तुम्हें एक कलर आएगा, वो कलर वो इंडिकेटर के साथ मैच करो। एशियन पेंट का कैसे रहता है कलर्स, वैसा वो कलर्स के साथ मैच करो, जो तुम्हारा कलर है मतलब वो पीएच लेवल है। समझ में आ गया? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Nowadays we don't use universal indicator, उसमें भी कलर खेलना पड़ता है, तो उससे अच्छा क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक लाइसिस के मेथड से यूज करते हैं। 2 वायर्स रहेगा, वो कनेक्ट करेंगे जगह पे जिसको भी चेक करने का है,
तो वो इंडिकेटर पे दिखा देगा कि पीएच लेवल क्या है। तो नाउअडेज वी डायरेक्टली यूज, यू कैन चेक दैट, डायग्राम में दिखाया हुआ है, दिख रहा है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Find out. Yes. Now, when you go in 11th and 12th, there is a very good experiment called as titration reaction. I think विनार मिस ने तुमको अगर थोड़ा बहुत बताया रहेगा उसके बारे में. There is a titration reaction. मतलब I will already put some acid in solution form along with water. Okay, so which will itself gets dissociated. I will take dilute acid. याद रखो 11, 12 we work only with dilute acids because you people are not capable to work with strong acids. Strong acid अगर तुम्हारे body पे गिरा तो जल सकता है इसके लिए. So we take dilute acid, mix it with water. ठीक है, and we know the known quantity of it. मतलब हमारा इसका quantity हमको मालूम है. Assume करो 100 ml है. ठीक है, अब इधर है ना मैंने NaOH डाला है. This is called titration reaction. NaOH डाला है जो फिक्स वॉल्यूम पे है. मैंने इसका रीडिंग लिया हुआ है. इधर है ना मैंने इसका रीडिंग लेके रखा है. यहाँ पे कॉक है. When I open this cork, this will start coming down drop by drop. Now to complete this reaction, I have put a certain indicator. मैंने एक इंडिकेटर पुटअप कर दिया है. जो जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रहते हैं वैसे मैंने एक इंडिकेटर पुटअप करके रखा है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फिनोफ्थिलिन इज एन इंडिकेटर यूज. तो वो इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी पुटअप करके रखा है. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज स्टिल कलरलेस. पर जैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप पुटअप कर रहा हूं ना, ठीक है, सो दिस बेस इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस. Now this is a very interesting reaction. ये तुम्हारा practical है 11, 12 का. So what actually happens when an acid reacts with base? ठीक है, तो क्या होने वाला है बताओगे मुझे? क्या होगा, क्या बनेगा? Salt and Salt plus water. Is called neutralization reaction. समझ में आ गया? तो I think सबको मालूम है salt and water बनेगा. बट ये एक्चुअल में हुआ कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो HCl, as soon as I put it in water, if you remember हमने स्टार्ट जब HCl का किया था, HCl was a strong acid. Remember that? Yes. Yes, sir. Strong acid का मतलब वो नियरली कंप्लीटली डिसोशिएट होता है. ठीक है, और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस था. यानी as soon as ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है ना, वो नियरली कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया. ठीक है, सो नाउ बिकॉज दिस एसिड एंड बेस बोथ आर इन द सेम सॉल्यूशन, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप भले गिर रहा है पर ये डिसोशिएट भी इमीडिएटली हो रहा है. ये इमीडिएटली डिसोशिएट होके ये आयन, पॉजिटिव आयन, रिएक्ट्स विद द नेगेटिव आयन ओवर हियर एंड दिस H प्लस रिएक्ट्स विद OH माइनस. यानी क्या फॉर्म हो गया? NaCl plus H2. समझ में आ गया? So we get salt and water. This reaction is called as neutralization reaction. Now when do I say that neutralization complete हो गया? When the color changes. आवाज आ रहा है भी बराबर? This reaction is called as a neutralization reaction. Now ये reaction में कैसा था ना, तुमने ड्रॉप डाल रहे. It's a slow reaction. आराम से देख के करना पड़ता है. घाई नहीं करना, नल नहीं ओपन कर दिया एक साथ, ये आने दो ना, गिरने दो ना, ऐसा नहीं करने का. ठीक है, एक एक ड्रॉप पुट अप करने का. Because as soon as the neutralization takes place, now understand what is actually happening here. ये तुमको भले 11th में concept बहुत simple है समझने के लिए. As soon as neutralization takes place, इसका सब Na plus OH minus will combine with H plus and Cl minus. सब का सब कॉम्बिनेशन हो जाएगा. मतलब एक भी मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा गिरना नहीं चाहिए. समझ में आ गया? इसलिए ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराने का है. जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होएगा ना, दिस फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर के कारण इट विल टेक अ सर्टेन कलर. यानी कौन सा कलर? अप्रोक्सीमेटली ऑरेंज टाइप का कलर ले लेगा.
ऐसा कलर अगर आ गया ना, मतलब न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। यू हैव टू टेक दैट फ्लैग, शो इट टू योर टीचर, मिस बराबर हुआ क्या एक्सपेरिमेंट, मिस कलर देखेगी, बोलेगी यस परफेक्ट, एक्सपेरिमेंट इज गुड। अगर ये ऑरेंज कलर ज्यादा पिंकी कलर बन गया ना, पिंकी कलर का मतलब क्या हो गया पता है, कि तुमने NaOH ज्यादा डाल दिया, तो मिस बोलेगी गेट लॉस्ट, अगेन डू इट। समझ में आया? So this is how the reaction takes place. So this new, we can take up any metal, just you have to remember it should be a highly reactive metal. If I take this metal, react with any acid, reaction is going to be similar. This metal will replace, with this metal will replace hydrogen, इसको किक कर देगा, इसको किक करके निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड will be formed. मैग्नीशियम का वैलेंसी is 2 and chlorine का वैलेंसी is 1. So MgCl2 will be formed plus हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। Now this hydrogen which is separated, ये अकेला नहीं रह सकता, so it will form hydrogen gas. ठीक है? So in this reaction, magnesium metal reacts with HCl acid. अब समझ में आ गया name, reaction of acids with metal. मैग्नीशियम ने H को रिप्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। क्लियर? सो वी गेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब पता कैसे चलेगा ये हाइड्रोजन गैस है? ये हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करो। हाउ टू कलेक्ट इट? इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ऐसे कलेक्ट करें, क्योंकि हाइड्रोजन लाइट है ना, तो हाइड्रोजन ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा, एयर नीचे से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये सब साइंटिफिक वर्ड्स है, ये सब हम लोग आगे बहुत बार यूज करने वाले हैं, अभी से समझो। तो नसीब तुम्हारा, नहीं समझ में आएगा ठीक है छोड़ दो। नाउ यू विल कलेक्ट द हाइड्रोजन गैस इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब। तुम उसके ऊपर थंब रखोगे, टेस्ट ट्यूब को टर्न करोगे, वी विल टेक अ लाइटर, ठीक है, सिगरेट जलाते हैं ना, ठीक है, वो वाला लाइटर, ठीक है, एंड देन वी विल रिमूव द फिंगर एंड जस्ट कीप इट ओवर देयर। ओके, बाय द वे टेस्ट ट्यूब को ऐसे मत होल्ड करना, टेस्ट ट्यूब को उल्टा होल्ड करो, मतलब टेस्ट ट्यूब को ऐसे होल्ड करो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लाइट है ना, तो वो नीचे से निकल नहीं पाएगा, लाइट है ना तो वो ऊपर ही जमा रहेगा टेस्ट ट्यूब। इसको ऐसा होल्ड करो, लाइटर लो और नीचे रख दो, ठीक है। एज सुन एज यू कीप इट ओवर देयर, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, ब्लू कलर का फ्लेम एंड पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो पॉपिंग साउंड का मतलब हाइड्रोजन गैस आ गया। समझ में आ गया? तुम बोलेगे सर ये सब चीज करना जरूरी है क्या? यस, दिस इज हाउ यू विल हैव, दिस इज अ प्रूफ। ये प्रूफ है कि सॉल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस बना क्या नहीं, वो प्रूफ तुमको चाहिए, ये प्रूफ ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आया? दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। नाउ लेट अस बैलेंस दिस रिएक्शन। 2 chlorine 1 chlorine, 2 hydrogen 2 hydrogen, balanced, magnesium is balanced. This is a balanced reaction. Let us take another reaction, zinc। अभी हम लोग समझो, अभी इधर ब्लैंक स्पेस देके रखा है, so we will learn how to fill the blank also. Now zinc plus ZnSO4। now SO4 से तुम्हें हिंट मिल गया, यहाँ पे का ब्लैंक स्पेस में कौन सा एसिड आएगा। SO4 देख के डिसाइड करो कौन सा एसिड आएगा। H2SO4। H2SO4। देख के मत आंसर करो, H2SO4, ठीक है। तो जिंक H2SO4 से रिएक्ट हो गया टू फॉर्म मेटल, ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ फॉर्म हो गया जिंक सल्फेट। ये हाइड्रोजन बेचारा इसको लात मार दिया तो ये अकेला हो गया ना, ये अकेला घूम रहा है। समझा? नाउ लेट्स सी बैलेंस है क्या नहीं रिएक्शन। ये सब तुमको मैंने सिखा दिया है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे पता करते हैं, हाइड्रोजन निकला क्या नहीं, पॉपिंग साउंड, ये सब बता दिया। नाउ दैट इज टू बी अप्लाइड फॉर ऑल रिएक्शन। नाउ बैलेंसिंग, जिंक सल्फेट इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बैलेंस्ड है, 1 zinc 1 sulfate hydrogen hydrogen, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस वे यू कैन फिनिश द नेक्स्ट ऑफ द फर्दर रिएक्शन। मैं थोड़ा रिवीजन दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कि तुम लोग को पहले भी मिस ने कराया रहेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद, कुछ नहीं समझे तो प्लीज आस्क, मेटल ऑक्साइड, ठीक है।
उसके बाद आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड सॉरी reaction of base with non-metal oxide. Now, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारे रिएक्शन फिर से 10th स्टैंडर्ड में है. सो डोंट स्टडी कि नहीं सर ये चैप्टर मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया, जाने दो. ठीक है, ये वापस 10th में आने वाला है. तुम कितना भी भागने का कोशिश करो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा. तो इसलिए बेस्ट है इसको फेस करो. ठीक है. Now, reaction of acid with metal oxide. Let's take one example. Acid बोला है ना, so let's take an acid, HCl. Metal oxide बोला है ना, let's take a metal oxide. ठीक है. So this is acid, this is metal oxide. Now when this acid reacts with metal oxide, यहाँ पे exchange होने वाला है ions का. इसका उसको, इसका इसको, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड उसको. Now exchange of ions will take place means calcium ion which is a positive ion वो दूसरे के negative ion से combine हो रहा है. ये metal ion दूसरे के negative ion से combine हो रहा है. Interesting part है. ये exchange of ions takes place. ion समझते हो ना, मैंने जब पानी में mix किया dissociation हुआ था, remember मैंने न्यूट्रलाइजेशन में लिख के दिखाया था that HCl जब मैंने वाटर में मिक्स किया था डिसोसिएशन हुआ H plus Cl minus. तो ये वही है आयन से. तो HCl जो है ना that will form ions यानी H plus Cl minus. वैसे कैल्शियम ऑक्साइड also forms ion Ca plus and O minus. This calcium will react with chlorine यानी इसका पॉजिटिव आयन एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका पॉजिटिव आयन उस वाले के नेगेटिव आयन से कंबाइन हो गया, यानी क्या फॉर्म हो गया CaCl. कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है. तुम बोलोगे सर कैसे याद रहेगा, उसके लिए तुमको याद है रेडिकल टेबल बोला था मैंने, लर्न करवाया था. वो रेडिकल टेबल याद होना ही चाहिए, अगर वो याद रहेगा तो ये याद रहेगा. सो वंस अगेन कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, यानी इसका 2 इसको गया और इसका 1 इसको आ गया CaCl2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड बन गया. अब बचा कौन, हाइड्रोजन, और बचा कौन, ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2. Water. Now the interesting part over here. चलो एक पहले बैलेंसिंग करते, एक और रिएक्शन लेते, फिर इंटरेस्टिंग पार्ट लेते. ठीक है, पहले बैलेंसिंग करते. 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 calcium 1 calcium, 1 oxygen 1 oxygen. Let's take one more reaction. कोई भी लेते, चलो अपन लास्ट वाला लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. थोड़ा सा डरावना है, उसको लेते हैं Al2O3. ऐसे थोड़ा डर जाओगे ना ऐसा नंबर्स देख के. प्लस HF, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये भी एसिड ही है ना. ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन किससे रिएक्ट होने वाला है, नेगेटिव किसके नेगेटिव आयन से, हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसका नेगेटिव आयन यानी F. सो इट विल फॉर्म AlF. ठीक है. नाउ एल्यूमिनियम का वैलेंसी इज 3, इधर दिखता है, देखो दिखा, और ऑक्सीजन का वैलेंसी इज 2. तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, 1 लिखते नहीं है अपन, प्लस H2. ठीक है. Why I said this is a little difficult reaction, इसलिए मैंने ये लिया. तो why this is difficult, कि इसका बैलेंसिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ओके. नाउ this is 3 fluorine 1 fluorine, 2 aluminium 1. Let's start with aluminium. 2 aluminium 1 aluminium. तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 2. क्लियर. 3 2s are 6 fluorine, 3 2s are 6 fluorine, 6 fluorine 1 fluorine, 6 hydrogen 2 hydrogen.
3 2s are 6. 3 oxygen, 3 oxygen. मस्त, मजा आया? यस सर। मजा आया क्या? मजा आया? Yes, मजा Yes, आना sir. चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी तो साइंस पढ़ रहे हैं ना। ऐसे बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट है तो छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और चालू करो, बनिया का दुकान खोल दो, ठीक है? ओके, नाउ याद है ये रिएक्शन एसिड्स विद बेस क्या फॉर्म हुआ था? And water. नाउ मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बीच में? यहाँ नाउ अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है? द इंटरेस्टिंग पार्ट इज this is called as a neutralization reaction, because when an acid reacts with a base we get salt and water, salt and water, so this is called as a neutralization reaction. Salt and water form हो गया ना, so it is a neutralization reaction. ओके, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक एसिड चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, सॉल्ट एंड वाटर। अब समझा मैंने क्यों बताया वो? सॉल्ट एंड वाटर मतलब ये क्या हो गया? कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया? neutralization. वेरी नाइस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए आई नीड एन एसिड एंड आई नीड अ बेस। लेट्स सी, आई हैव एन एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड किसका रोल प्ले कर रहा है? Base. यही इंटरेस्टिंग पार्ट था जो समझने का है, रटने का नहीं है। जिंदगी निकाल लो, रटोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। वो लिंक करोगे ना तो समझ में आएगा। सो इफ यू लुक एट दिस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए एसिड चाहिए और बेस चाहिए। ये एसिड है तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है? बेस का। तब तो पेज नंबर 67, what type of a compound is metal oxide? Page 67, what type of a compound is metal oxide? ये इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ये दिखा, मेटल है ना इसलिए मेटल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है? विथ रेफरेंस टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विथ रेफरेंस टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये मेटल ऑक्साइड किस टाइप का कंपाउंड है? बोलो किस टाइप का कंपाउंड है? बेसिक, बेसिक इन नेचर। लिखो वहां पे आंसर, वहां पे नीचे भी लिखा हुआ है, चेक करो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब समझा ना? Yes, sir. Okay, next reaction, reaction of base with non-metal oxide। अरे सर ये मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड समझ में नहीं आता है, अगर दिमाग है तो सब समझ में आएगा। ये वर्ड पे ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, समझ में आया? या अभी भी गवारी बन के रहने का है? सर नहीं समझा, नहीं समझा, बहुत इजी है। मेटल ऑक्साइड कॉमन सेंस है, ठीक है? मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया? Yes, sir. एंड दिस Yes, इज sir. बेसिक इन नेचर। This is base, sorry, basic in nature, sorry for the wrong words. Base, this is base. Now I am taking a base and I am reacting it with a non-metal oxide. Base को non-metal oxide से react कर रहा हूँ। Base with non-metal oxide will form carbonates, sodium carbonate. Sodium का वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है। रिमेंबर कार्बोनेट का वैलेंसी इज 2, बट बाइकार्बोनेट, रिमेंबर बाइकार्बोनेट वर्ड सुना रहेगा, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 का वैलेंसी 1 होता है। ओके चलो उसको जाने दो, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है प्लस H2।
once again पहले बैलेंस करते, बाद में आगे का देखते. Na2 Na1 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4 ऑक्सीजन, 3 + 1 4, 1 carbon balanced. Let's take one more reaction. Sodium hydroxide with sulfur trioxide will form sodium sulfate. Sodium का वैलेंस is 1, सल्फेट का वैलेंस is 2 plus H2. ठीक है, let's see the balancing part. Na2, 2 hydrogen, 1 sulfur, 4 oxygen plus 1 5, 3 plus 2, 3 plus 2 कितना हो गया? 5. अब चलो वापस आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट को. If we get salt and water, what do we call this reaction as? Neutralization. Neutralization. So this is salt and water. ये salt and water है. So what is this reaction? Neutralization. Acid should react with base to form salt and water. I have base. Please mute. Okay. So where was I? I get salt and water. Now salt and water लाने के लिए I need acid and base. I have base. So ये जो non metal oxide है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? Acid का. Acid. So ये acid का रोल है या फिर acidic in nature. Understood? Yes, sir. मजा आया? sir. मजा आना Sir. चाहिए. साइंस है, मजा. If I pass carbon dioxide gas through lime water, so lime water में मैंने carbon dioxide gas पास किया तो क्या होने वाला है? When I pass carbon dioxide gas through lime water, that lime water turns milky. मिल्क जैसा बनेगा, मिल्क नहीं बनेगा. पीना मत, समझा? चूना है, चूना पीते नहीं ना अपन, इसके लिए. So carbon dioxide gas, if I pass through lime water, it turns milky. Now why does it turns milky? This is a favorite question. ये question 9th में भी है, यही same question 10th में भी है, इसलिए reason बराबर दिमाग में रखना. When I pass carbon dioxide through lime water, it turns milky because calcium carbonate is a white precipitate. ये white color का चूना है, substance है, समझा? चूना पता है ना, तंबाकू में खाते हैं. ठीक है, वो छोड़ो, तंबाकू वाला एग्जांपल में ले लो. दीवार पे जो पेंट होता है मालूम है, व्हाइट कलर का डिस्टेम्पर वगैरह लगता है, वो भी चूना ही है. समझ में आ गया? So calcium carbonate is white color precipitate. Now if someone asks you why does it turns milky, so why does it turn milky? Because ये white color है ना, so it turns milky. Are you clear? Mark that answer, page number 68, सबसे टॉप पे. लास्ट 3 लाइन मार्क करो. A precipitate of calcium carbonate is produced on its reaction with lime water. This reaction लिखो वहां पे, ठीक है, वो आंसर है यार, क्वेश्चन उसके ऊपर लिखा हुआ है. Why does it turns milky? Now, the last type of reaction, when we are done, this reaction is reaction of acids with carbonates and bicarbonates. Reaction of acids with carbonates, reaction of acid with bicarbonates. फर्क समझ में आया? Yes, कार्बोनेट्स का वैलेंसी Yes, sir. वेरी नाइस. कार्बोनेट्स का वैलेंसी 2 है. बाइकार्बोनेट, ये HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, का वैलेंसी 1 है. दिख रहा है यहाँ पे? कार्बोनेट्स का वैलेंसी is 2 and bicarbonates का वैलेंसी is 1. Clear? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. When carbonates reacts with acid, we will get salt, NaCl salt, plus water plus carbon dioxide gas.
So we get salt, we do get water, but अपने को कुछ extra मिलता है. What is that? Carbon dioxide gas. Carbon dioxide. Okay. Same thing happens over here. We get salt, water, and we get carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. ये बाइकार्बोनेट के कारण ना बैलेंसिंग इजी हो जाता है. कार्बोनेट के कारण ना बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो बैलेंसिंग में फर्क आएगा. इसका बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, इसका बैलेंसिंग कंपैरेटिवली इजीली आएगा. इनफैक्ट इसमें बैलेंसिंग करना ही नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. और इसमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, नॉट डिफिकल्ट, करना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद दिस. 2 hydrogen 1 hydrogen 2, 2 chlorine 1 chlorine 2, 2 sodium 2 sodium, 1 carbon 1 carbon, 3 oxygen 3 oxygen. समझा? चलो वापस करें. हाँ ओके. हाइड्रोजन या फिर सोडियम से भी स्टार्ट करना है तो भी चलेगा. 2 सोडियम 1 सोडियम 2, 2 chlorine 1 chlorine 2, 2 hydrogen 2 hydrogen, 1 carbon 1 carbon, 3 oxygen 1 plus 2 3 oxygen. Balance. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Next. sir. Yes, sir. 1 sodium 1 sodium, 2 hydrogen 2 hydrogen, 1 carbon 1 carbon, 3 oxygen 1 plus 2 3 oxygen, 1 chlorine 1 chlorine. Already balanced. Water of crystallization, that is salt. Have you seen a salt, actual salt? घर का टाटा नमक नहीं, actual salt, salt pan पे जो होता है वो salt, rock salt बोलते हैं उसको. Yes, Yes. हाँ? Sir. yes, sir. तो उसका क्रिस्टल देख. Yes, That is a sir. crystal. That is a salt crystal. वो जो salt crystal होता है ना, that crystal is because of the water of crystallization. There is always some part of water of crystallization. So it is called. So this crystal is formed. तो ये crystal, जो भी crystals है ना, सब crystals के अंदर water of crystallization होता ही है. ये दिमाग में फिट करो. कोई भी crystal, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही है. ओके. नाउ देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो तुमको मार्क करना है, लर्न करना है. कम टू द फर्स्ट वन, क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉयल. मार्क करो उसको, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. और इसका ब्लू कलर मार्क करना, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन में आता है. व्हाट इज द कलर ऑफ क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉयल? सेकेंड, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रॉयल बोलते हैं. कलर भी मार्क करना. ये लर्न करना है, रट लर्न करना है, ये लर्न करना है. ठीक है. FeSO4.7H2 ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है. ये कलर फाइंड आउट करने आता है, फॉर्मूला लिखने आता है. क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है. एंड बेकिंग सोडा है ना केक बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट. याद रखना, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना वो वॉशिंग सोडा है. ये इधर जो लिखा है ना, ये वॉशिंग सोडा है और ये बेकिंग सोडा है. समझा? वैसे अपने को सिर्फ वॉशिंग सोडा का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म याद रखना है. .10H2O. सेकेंड, क्रिस्टलाइन एलम. एलम किधर यूज होता है पता है? टूटी बोलते हैं उसको. शेव करने के बाद रगड़ते हैं ना, या तुमको कभी जख्म होता है उसके ऊपर रगड़ते हैं, ठीक है. Yes. या फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एलम, टूटी. नाउ that is K2SO4 Al2SO4.24H2O. डॉट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं हो, तुम कर लोगे. ये सब एक्सप्लेन